नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर दाहोद से है, जहां युवती द्वारा आत्महत्या के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। आगे खबर झांसी से है, जहां प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित योग सप्ताह के 5वें दिन हुई शिविर की शुरुआत। साथ ही अगली खबर कैमूर से है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू रीति रिवाज से किया हिंदू लड़के से प्रेम विवाह। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर दाहोद जिले से है, जहां लिमखेड़ा तहसील में आत्महत्या के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। मृतका के परिजन 2 दिनों से न्याय की आस लेकर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। दरअसल मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों ने हत्या की है, जिसके बाद परिजन लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साहेब, मारू नाम मावी काळुभाई दलाभाई છે। આતરસુંબાનો રહેવાસી છું અને આ જે મરનાર છોકરી છે એ મારી ભાણી થાય છે અને આ લોકોએ ત્રાસના લીધે આ લોકોએ મારી ભાણીને મારી નાખવામાં આવી છે ખરેખર। અને રવિવારના 9 વાગ્યાના સમયે અમને ફોન કરીને કીધું કે ભાઈ તમારી છોકરીએ ફાંસી ખાધી છે એવું કરીને ફોન આવ્યો। અને ફોન આવ્યો એ જ ટાઈમે અમે ત્યાં સ્થળ પર ગયા તો સ્થળ પર અમને કોઈ અમારી ભાણી કે કોઈ ઘરનું વ્યક્તિ મળ્યું નથી। અને પહેલા પછી અમે સરપંચને ફોન કર્યો तो सरपंचे कीधु कि भाई तमारी छोकरी ने લીમખેડા सरकारी दवाखाना में लई गया है। तो अमे લીમખેડા दवाखाना में आया तो લીમખેડા दवाखाना में अमने लाश मळी नहीं। तो अमे फरी सरपंच ने फोन कर्यो तो यहाँ લીમખેડા तो कोई नहीं। तो सरपंचे एवं कीधु कि લીમખેડા से तमे बराबर तपास करो, हूँ आऊँ छूँ रस्ता में छूँ एम करे। अमने कलाक 2-3 कलाक गोल गोल फेरव्या अने ए लोको आया नहीं। पछी पाछो अमे फोन कर्यो कि भाई कई छे तो अमने कोई पछी दवा पाली करे 3 कलाक काढी नाख्या। पछी 108 आवीने 108 वाळाने अमने पूछ्યું કે ભાઈ તમે કોઈ વડિયાથી લાશ લાયા છે? તો કે હા। તો કઈ મૂકી? તો કે અમે દુધિયા સરકાર। દિલીપભાઈ છગનભાઈ મુનિયા છું, ગામ ડુંગરાનો રહેવાસી છું અને ગામના આગેવાન તરીકે મને લોકો બધા માને છે। અને કાલે લગભગ 9:30ના ટાઈમથી અત્યાર સુધી અમારું એફઆઈઆર કોઈ દર્જ કરી નથી। 24 કલાક થઈ ગયા છે અને ડિવિઝન ઓફિસે અમે આવ્યા, ત્યાં આગળ બી આ લોકો બાના કાઢે કે સાહેબ નથી, સાહેબ ભાઈ ગયેલા છે અને કોઈ અત્યારે અમારે એફઆઈઆર થયું નથી અને છોકરીની સ્મશાન વિધિ હજુ કરવામાં આવી નથી। પોલીસ તો એવો બાના કાઢે કરે સાહેબ કે તમારી એફઆઈઆર તો કાલે મેં એટલી બધી મગજમારી કરી, 3-4 કલાક અમને ગોળ ગોળ ફેરવ્યા કે સ્મશાન વિધિ પતાવી દો, તમારું પીએમ થઈ જાય પછી તમારે એફઆઈઆર થઈ જશે। પીએમ થયા પછી એ લોકો એવું કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ તમે સ્મશાન વિધિ પહેલા કરો પછી તમારે એફઆઈઆર કરીશું। કઈ કારણસર એવું કહી શકે છે? જો પોલીસ એફઆઈઆર નહીં કરશે તો તમે આગળ શું કરશો? તો અમે કાયદેસર કાર્યવાહી કરીશું સાહેબ, ત્યાં સુધી અમે સ્મશાન વિધિ નહીં કરીએ। હજી સાહેબ, મારું નામ સનુભાઈ વિજયભાઈ જાતે ડામોર। મારા છોકરાની છોકરી એટલે મારી જ છોકરી ગણે સાહેબ। હવે એ લોકોએ કોઈક મોબાઈલ પકડ્યો ધાનપુર છોકરાનો એમ કે એના તરાસથી આ છોકરીને પંચાણું છે, અમને કોઈ જાણ નથી કરી। પંચાણું છે છેલ્લે દિવસ જાણ કરી દોધિયાદરા મંદિરે એ લોકોએ પંચાણું રાખ્યું। પછી છોકરીને એકલીને પૂછતા હતા એ લોકો, અમે બી 3-4-5 દિવસ જણાયા હતા। છોકરીને પૂછતા મેં કીધું સાહેબ તમે છોકરી એકલીને પૂછો અને તમે છોકરાને લાવો, હરુભરું પૂછીએ। હરુભરું પૂછ્યાથી આપણે કોઈક એનો નિકાલ આવશે। સગન સાહેબ શું કે હવે સાહેબ ચાલો અમે જાઓ છોકરાને લેવા। એ ગાડી ઉપર ગયા, છોકરાને લઈ ને અને એ લોકોએ કીધું કઈ થાય હતા કે તમે ડુંગરાવાળા તમે જાઓ અને વડિયાવાળા તમે બી ચાલો કે આ છોકરી અરવિંદ તને કાલે મળશે, આજે નહીં મળે, લીમખેડા આપીશ એમ કરે। માસ્તર સાહેબ એમ કીધું એટલે અમે જતા રહ્યા સાહેબ। અને સવારમાં આ છોકરીનો આ કિસ્સો બન્યો અમને જાણવા મળ્યો। એટલું છે કંઈક ફાંસી ખાધી એવું કીધું એ લોકોએ કે ફાંસી ખાધી મરી જાય। અરવિંદ ઉપર ફોન આવ્યો કે જીવેશ એક મરી, એવું નહીં કે ફાંસી ખાધી એમ કરે। અને પાછા જ્યાં વડિયા જાય તપાસ કરી, તઈ ઘરમાં કોઈ હતું ને, ઘરમાં કોઈ ન મળે તઈથી અમે ફોન કર્યો કે લીમખેડા દવાખાના। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा मऊ रानीपुर सेवा केंद्र एवं नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित योग सप्ताह के 5वें दिन की शुरुआत आत्मिक अनुभूति के अभ्यास से हुई। तत्पश्चात प्रेमदास महाराज जी ने प्रवचनों के साथ शारीरिक व्यायाम करवाया एवं सप्त चक्र जागृति के लिए बीके रचना दीदी ने अनहद चक्र एवं मणिपुर चक्र का वर्णन करते हुए कहा कि वजन बढ़ाने के लिए ये अग्नि मुद्रा लाभदायी है। इस मुद्रा से मणिपुर चक्र जागृत होता है। इसमें अपान वायु मुद्रा का उपयोग करते हैं। तत्पश्चात चित्रा बहन जी ने मानसिक एक्सरसाइज करवाते हुए सभी को खुश रहने के टिप्स बताए और कहा कि आध्यात्मिक और शारीरिक योगा का पहली बार भव्य तरीके से महावीर पार्क में 7 दिवसीय योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
एवं बीके दीक्षा बहन ने सभी भाई बहनों को रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करवाई। अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार जी मऊरानीपुर ने कहा कि आज हम सभी को योग की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। योग एकमात्र ऐसी दवाई है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ शामिल रहे बल्लू तिवारी, माया शांति, समस्त नगर पालिका स्टाफ, नगर के गणमान्य नागरिक, छोटे बड़े भाई बहनों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां एक मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हिंदू लड़के से प्रेम विवाह किया, जहां दोनों पक्ष के परिजन भी विवाह में सम्मिलित हुए और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जहां आज समाज अंतरजातीय विवाह करने की भी इजाजत नहीं देता, वहीं दोनों परिवार के लोगों ने शादी कराकर एक मिसाल कायम की है। तब धर्म में शादी हो रहा है, इसके संबंध में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। दो धर्म नहीं, दो पंथ कहिए। जी जी। तो दो पंथ में हम जहाँ तक ये हमको जो लग रहा है कि हम जो इस्लाम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम पंथ है। जी जी। और ये तो घर वापसी, ये कहाँ कहा जाए कि दो धर्म की बात है। अगर लड़की और लड़का ये दोनों हैं, सनातनी हैं, और दोनों का प्रेम जब हो गया तो मैं नहीं समझता कि दो धर्म का मिलन हुआ है, बल्कि दो पंथ आपस में घर वापस आ गई लड़की। और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उस लड़के के माँ बाप को भी, उस लड़की के माँ बाप को भी, उस लड़की को, उस लड़के को भी, कि दोनों समाज में एक नया संदेश देंगे। आपसी कटुता और जो बढ़ रही है उसको मिटाने का काम ये दोनों लड़के हैं। और ये दोनों लड़के एक मिसाल पैदा किए समाज में कि हम अपने समाज को कैसे सुसंगठित और राष्ट्र को कैसे हम अखंड बनाएंगे, इसके लिए ये दोनों लड़के पर्याय हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर इस तरह की अगर बात होती है तो सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, सत्ता को भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से अपने घर में वापस आना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और हम जैसे लोगों को तो और बढ़ चढ़ करके स्वागत करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता हूँ मैं, सिविल कोर्ट भगवा में। सर किस जगह पर हैं आप लोग दो धर्मों से जुड़े हुए हैं और बहुत तरह का विवाद भी होता है, क्या इन सब चीज़ों से आप लोगों को सोचना नहीं पड़ा? इसमें आप लोगों के माँ बाप राजी हैं? कहीं से कोई दिक्कत परेशानियाँ? आपका शुभ नाम? जी शुभ नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? और आप? अभी वर्तमान नाम आपका क्या रखा गया है? आपका पहले वाला घर कहाँ है? मायके कहाँ था? कौन सा थाना में? घर में वापस आना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और हम जैसे लोगों को तो और बढ़ चढ़ करके स्वागत करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता हूँ मैं, सिविल कोर्ट भगवा में। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। योग हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें शांति, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। योग अभ्यास की मदद से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। ये बात आयुष विभाग शहडोल द्वारा आयोजित निःशुल्क वृहद योग शिविर में योग प्रशिक्षक योगाचार्य शिवाकांत शुक्ल द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने योग की उपयोगिता बताते हुए कहा कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के संपर्क में आता है और एक उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। विभिन्न योगाभ्यासों के माध्यम से जैसे कि षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान आदि से व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है, जो हमें मानसिक और आत्मिक स्थिति में स्थिरता प्रदान करने में सक्षम होता है। आपको बता दें कि 21 जून को नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी जिले में की जा रही है। नमस्कार, मैं योगाचार्य शिवाकांत शुक्ल आपको बताने जा रहा हूं कि हम 21 जून 2023 को नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, और इस वर्ष का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के थीम के साथ हम वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा योगोत्सव मनाने जा रहे हैं। योग मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। व्यक्ति योग अभ्यास से स्वयं का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करता है। हम सभी आइए
सहर्ष योग को स्वीकार करें और इस ऋषि मुनि की अद्भुत देन को अपने जीवन में उतारें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरि ओम तत्सत। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर तिलकवाड़ा से है, जहां किसानों को खेती के लिए समय पर बिजली न मिलने से सोईकुआ सब स्टेशन में किसानों ने एकत्रित होकर विरोध जताया। मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में वर्षा की ऋतु की शुरुआत हो रही है। ये सीजन किसानों के लिए नई खेती करने का होता है। इस समय किसानों को पानी की जरूरत होती है। समय पर बिजली उपलब्ध न होने से सोईकुआ, नमारिया, उमेनपुरा, साहेबपुरा के साथ आसपास के विस्तार के किसानों को भारी मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया, जिसकी वजह से आज हम सब एकत्रित होकर सोईकुआ सब स्टेशन में आकर बिजली की मांग कर रहे हैं। इस समस्या के बारे में जेबी के इंजीनियर कुणाल प्रजापति के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि हाल ही में कई विस्तार में बिजली की समस्या उत्पन्न हुई थी। इस समस्या के लिए बिजली विभाग की ओर से रिपेयरिंग की काम करते हुए बिजली पहुंचाई जा रही है और सोईकुआ सब स्टेशन में विस्तार से आए हुए गाँव में बिजली की समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन ये समस्या दूर करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन फॉल्ट न मिलने की वजह से 2 दिन तक बिजली की समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन आज सुबह बिजली कर्मचारियों की ओर से ये समस्या दूर करके किसानों के लिए बिजली शुरू कर दी गई है। આ સરપંચ શું સમસ્યા છે? તમે અહીંયા જીબી ખાતે આવ્યા છો, શું તકલીફ છે તમને? સાહેબ 4 દિવસથી લાઇટનું છે ને કંઈ ઠેકાણું છે નહીં અને જીબીમાં ફોન કરે છે કમ્પ્લેન નંબર પર તો મારા જ ફોન ઉઠાવે છે અને તેમ કાપી નાખે, સીધો જવાબ આપતા નહીં અમને। અને છતાંય આજે સવારમાં 7 વાગે જીબી સોઈકો સબસ્ટેશન પર આવ્યા તો એ કહે છે કે તમે અંદર એન્ટર ના થશો કે, તો એમને કંઈક બોર્ડ મારેલું નહીં કે અંદર એન્ટર ના થશે એવું। જો બોર્ડ મારેલો તો અમે પબ્લિક બહાર ઊભીને એમની જોડે વાત કરી। તો કેટલા દિવસથી લાઇટ નહીં મળી તમને? આજે 5 દિવસ સાહેબ લાઇટ આવતી નહીં। તમે ફોન કર્યો તો શું જવાબ મળ્યો તમને? ફોન કરતા એવું કે લાઇનમેન લાઇન પર છે એવું કીધું આ લોકોએ। એવું છે? તો તમે લોકો અહીંયા કેટલા વાગ્યાના આવ્યા છો? અમે 6 વાગ્યાના આવ્યા કરીએ સાહેબ। શું માંગ છે તમારી? લાઇટની માંગ છે। કયો વિસ્તાર છે તમારો? અમારો ઉમેદપુરા ખાતા આશિત્રા। શું નામ છે તમારું? બારિયા પિયુષભાઈ લક્ષ્મણભાઈ। તમારું? મારું નામ અરવિંદભાઈ પ્રભાતભાઈ બારિયા। તો શું સમસ્યા છે તમારે? મારે 7 થેલી કપાસિયા મૂકેલ છે સાહેબ। હા, એમાં પાણી 4 દિવસથી આ લાઇટ આવતી નથી, ફૂંકાઈ ગયા છે, એનું શું કરવું? લાઇટ નથી આવતી? હા। તમે રજૂઆત કરી કોઈને? હા કરેલી ને। અત્યારે આજે સવારે 6 વાગે હું સબ સ્ટેશન સોઈકુવા માટે આવ્યો હતો, ત્યાંથી મને યોગ્ય જવાબ ના મળ્યો। અમે લાઈન ચાલુ કરેલી છે એવું કીધું। કઈ બાજુ ખેતી આવેલી તમારી? આપણે નમારિયાની બાજુમાં ઉમેદપુરા। કેટલા દિવસથી લાઇટ નહીં મળી? 5 દિવસથી લાઇટ નહીં મળી। તો તમારી શું માંગ છે? મારે લાઇટ જોઈએ, મારા કપાસિયા ઉગ્યા જ નહીં, એ કપાસિયાના વળતર આપે મને, એવી મારી તો માંગ છે। શું નામ છે તમારું? અરવિંદભાઈ પ્રભાતભાઈ બારિયા, ગામ ઉમેદપુરા, રહેવાસી। આ જે સોઈકુવા વિસ્તારના જે ખેડૂતો છે, જે છેલ્લા 10 દિવસથી લાઇટ માટે જે સમસ્યા ઉદ્ભવી છે, કેટલી વખત રજૂઆત કરવા છતાં બી આ લોકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી આવતો, તેનું કારણ શું છે? આમાં અત્યારે છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી થોડોક પવન અને વાવાઝોડાના કારણે અમુક વિસ્તારોની અંદર બનેલું છે, ખેતીવાડી વિસ્તારમાં। પણ હવે એવું નથી, આજે બી હમણાં પાવર ચાલુ થઈ ગયો છે, જાતે આવીને પાવર ચાલુ કરેલો છે। આ લોકોનું કહેવું એવું છે કે અમે ફોન કરીએ છીએ તો કોઈ જવાબ સીધો આપતો નથી, એનું શું કારણ? આ ખેડૂતો જાય ક્યાં? ઓકે, એની અંદર એવું છે કે કમ્પ્લેન સેન્ટરના નંબર પર ટોટલ અમારા 11,000 કન્ઝ્યુમર છે DGVCLના। એની અંદર તમારા બધા એક સાથે ફોન કરે તો એક સાથે બધાનો ફોન ઉચકવો એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે તમે એને ઉઠાવી ના શકો, કેમ કે વ્યસ્ત આવતા હોય, કદાચ એમની કમ્પ્લેન અમારા સુધી ના પહોંચી હોય એવું બની શકે, એના કારણે આવું થઈ શકે। તો હાલ ખેતીની સિઝન છે, તમે જાણી શકો છો, તો આ લોકોની લાઇટની સુવિધા વ્યવસ્થા ક્યાં સુધી ચાલુ થઈ જશે? હા થઈ ગઈ ને, અત્યારે બધો પાવર ચાલુ કરી દીધો છે। થઈ ગઈ ખરી? 100% થઈ ગયું છે। આપનું નામ? કૃણાલ પ્રજાપતિ। तिलकवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साझा सेवा सहकारी समिति के उपकेंद्र परसबोर्ड में एक ऐसा मामला सामने आया जहां कर्मचारी द्वारा खाता धारक की जानकारी के बिना ही धान बेचा गया तथा पैसे की निकासी भी की गई। खाता धारक ने जब बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया तो उसे पता चला। इसके बाद उसने कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत की। शिकायतकर्ता गिरधारी ने बताया कि सेवा सहकारी समिति मर्याद साझा पंजीयन क्रमांक 1246 के कर्मचारियों के द्वारा मेरी भाभी भगवती पत्नी स्वर्गीय मीनाराम वर्मा की सोसाइटी खाते में वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में क्रमशः 32.80 क्विंटल एवं
94.40 क्विंटल धान बेचा गया एवं जो राशि मेरे खाते में आई उसे भी गैर कानूनी रूप से निकासी की गई, जिसे मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला इस प्रकार सोसाइटी के कर्मचारी जो परस बोर्ड उपकेंद्र में सहायक के रूप में होरीलाल सिन्हा एवं ऑपरेटर के रूप में अंश सोनी थे। मेरे द्वारा वर्ष 2019 से सोसाइटी का लेन देन बंद है, जिसके बाद इस प्रकार के फर्जी तरीके से धान बेचा गया एवं राशि भी खाते से निकाली गई, जो कि सोसाइटी एवं बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया है। धान के बेचे न फर्जी टाइप की तेका बड़ा मैं जिला सरकारी साझा केंद्र परस बोर्ड के रेस्ता में बड़ भौवी के नाम में न फर्जी टाइप के धान बेचते हैं और हमारे जानकारी भी पैसा भी निकाले वहाँ खाता से। कौन निकाले? अब सब सोसाइटी से दोनों मिलजुल के निकाले, बैंक वाले मिल के सब। जानकारी मिली इसका आप लोग की कौन निकाले? नहीं, ये जानकारी हुई जब ये लेन देन करते थे वहाँ जान ही हुई, वो सब लेते थे। कैसे पता चली साहब के निकासी हुए बेचे के? मैं बैंक में अपन है कल गया ना, तब मुझे पता चली स्टेटमेंट निकलवाया। और जो सोसाइटी का था कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में गया है या फिर लापरवाही पूर्वक या फिर जानबूझकर ऐसा की गई है, उसका जांच के लिए मैंने नोडा से भी कहा है और ये 8-10 दिन में इसकी भी कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां नदियों से खनन करने में रोक लगाने के मामले में अब केवल पखवाड़े भर का ही समय शेष बचा है। ऐसे में बालू माफिया जिम्मेदारों की सरपरस्ती और पुलिस की मिलीभगत से अधिक लाल सोने को लूटने में लग गए हैं। कम समय में ज्यादा धन कमाने के चक्कर में ये माफिया अवैध तरीके से लाल सोने की लूट करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस खेल में प्रशासन की बराबर सरपरस्ती हासिल है। राजापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बरुआ हो या फिर धौरहरा खदान हो, दोनों जगहों में पोकलैंड मशीद नदी के बीच जलधारा में उतरकर तलहटी तक की बालू की निकासी कर रही है, जो कि पूरी तरीके से खनिज नियमों के विपरीत है। वहीं पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अवैध तरीके से चल रहे खनन में दोनों प्रांतों की सरकारों को दोषी ठहराया था और कहा था कि इनके चलते नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं अवैध खनन के चलते जहां एक और जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है, तो वहीं भारी भरकम वाहनों की धमाचौकड़ी से सड़क मार्ग भी टूट रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं इस बारे में जब खनिज अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो खनिज अधिकारी ने फोन नहीं रिसीव किया। पड़ोसी जनपद कौशाम्बी की बात करें तो वहां पर तैनात जिलाधिकारी ने बैठक कर उप खनिजों को निर्देश दिए थे कि जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाएं। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। इस दौरान खनन पट्टाधारक व ट्रांसपोर्टर भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जनपद से होकर जाने वाली सभी ओवरलोडेड गाड़ियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर नीलोखेड़ी से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश में पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा शुरू की गई पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा सोमवार को जिले के अनेक गांवों से होकर गुजरी और नीलोखेड़ी काली माता मंदिर से होकर गोल सर्किट से गुजरकर बजरंग सेवा दल यानी बारात घर स्थान पर आ पहुंची। अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने इसे हिस्सा लिया, जिसमें राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पेंशन की जरूरत केवल कर्मचारियों को ही नहीं, समाज के हर उस व्यक्ति को है जो खुद या जिसके बच्चे सरकारी नौकरी की कतार में खड़े हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश में पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा शुरू की गई पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा सोमवार को करनाल जिले के अनेक गाँव से होकर गुजरी। नीलोखेड़ी में कर्मचारी यूनियनों, ग्राम पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं, किसानों एवं व्यापारिक संगठनों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। नई पेंशन नीति के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जो नाम मात्र की पेंशन मिलती है वो बुढ़ापा पेंशन से भी कम बनती है। इस प्रकार नई पेंशन योजना कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा को खत्म करती है, इसलिए ये आंदोलन केवल कर्मचारियों का ना होकर एक जन आंदोलन है और सब आमजन इसमें अपनी भागीदारी दे। उन्होंने कहा कि अनेक प्रदेशों में सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को जायज़ मानते हुए इसे लागू कर दिया है, लेकिन हरियाणा में अब तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इस यात्रा के माध्यम से कर्मचारी अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एक ही मांग है हमारी, पुरानी पेंशन नीति जो 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा बंद की गई थी, उसको पुनः लागू किया जाए। हमारा
हमारी एकमात्र मांग है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। जो 2004 में केंद्र सरकार में, 2004 में हरियाणा में सरकार ने बंद कर दी थी, उसके लिए हम लगातार 2 जून से साइकिल से चले हैं नांगल चौधरी से और तमाम जिलों से होते हुए 23 दिन को महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हेतु की जाती है और उनसे गुहार लगाएंगे कि संविधान में जो हमें अधिकार दिया है कि एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी बनती है कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा करना, उसको पूरी सरकार निभाए। उसके लिए ये लगातार संघर्ष जारी है। देखेंगे 23 आज हमारी जो पेंशन स्कीम की जो रैली निकाल रहे हैं प्रधान जी द्वारा, आज नीलोगढ़ी में पहुंचे हैं। हम उनका अपने दिल से स्वागत करते हैं और यहाँ आने पर उनको भरोसा दिलाते हुए हम तन मन धन सन के साथ हैं। और हमारी एक मांग है कि हमारी खेड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता विंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां बलिया और देवरिया में जानलेवा हीट स्ट्रोक से हाहाकार मचा है। इसे देखते हुए रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां सभी सीएचसी में विशेष इंतजाम के साथ जागरूकता और बचाव पर अधिक जोर दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक भीषण गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। यही गर्म हवाएं जब शरीर में व्याधि उत्पन्न करती हैं तो इसे लू लगना या हीट स्ट्रोक कहते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार भीषण गर्मी के साथ तेज धूप हो रही है, उसमें यथासंभव बाहर निकलने से बचना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो शरीर को पूरे ढकने वाले कपड़े पहनकर निकलें। सिर और मुंह को अंगोछे से ढांक लें। धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करें और पानी के साथ ORS का घोल साथ लेकर चलें। उन्होंने हीट स्ट्रोक के लक्षणों को बताते हुए कहा कि यदि अचानक शरीर का तापमान बढ़ जाए और नाड़ी तेज चलने लगे, शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दें और अर्धमूर्छित अवस्था में व्यक्ति आए तो तुरंत उसे आइस कोल्ड ट्रीटमेंट देने के साथ ही तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी में विशेष तौर पर हीट स्ट्रोक के मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। हीट स्ट्रोक इस भीषण गर्मी में जो लू लग जाता है उसी को हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें हीट स्ट्रोक होने पे या लू लगने पे एक पहली बात तो जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। चेहरे पे या शरीर पे गरम लाल दाने जैसे ये सब भी हो सकते हैं। आपकी पल्स नाड़ी बहुत तेज़ हो सकती है। बेहोशी या सेमी बेहोशी की स्थिति भी हो सकती है और ज़्यादा और बढ़ने पे झटके भी आ सकते हैं। इसका इलाज क्या है? पहले तो इसका बचाव ही इलाज माना जाता है कि आप बेहतर हो धूप में ना निकलें, और अगर धूप में निकलना बहुत ज़रूरी हो तो अपनी प्रिकॉशन के साथ, अपनी सावधानी के साथ निकलें। गमछा डाल लें, छाता ले लें, चश्मा, काला चश्मा ले लें और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।